Dear students, welcome to StudyGist, the world of educational solutions. आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ about the current affairs of 8 जुलाई. लेकिन आगे बढ़ने से पहले I want to remind you of the social media platforms through which you can connect with us. Do subscribe to our YouTube channel and like, share and subscribe our videos. Like us on Facebook, join our Telegram channel and follow us on Instagram. You can also join our WhatsApp community using this number given here. And for even more information, log into the website www.studygist.in. As you can see here, our YouTube channel looks like this. Do subscribe to our channel and press that bell button so that you can get notified whenever our new study related video comes up. So like, share and subscribe more so that we can create more videos with your support. And this is our Facebook page. Please like us on Facebook to get daily updated current affairs. Now let us dig into today's class. So the first thing is related to banking sector. Obviously बहुत ही important एक fact है, ये जो first question है ये itself बहुत एक important है, ठीक है. अब जो situation है इसको fight करने के लिए बहुत banks भी and financial institutions जो है वो बहुत सारे apps and projects भी launch कर रहे हैं. तो इन सब के names क्या है, इसका aim क्या है, जिस बैंक से जुड़े हुए हैं वो प्रोजेक्ट, उस पर्टिकुलर बैंक के बारे में, उसका MD CEO कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सब चीजें फैक्ट्स ये सब जानना पड़ेगा, ठीक है. तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि CA का पूरा एक प्रिपरेशन हम लोग का हो सकता है, ठीक है. So let us begin. Which bank is to offer zip drive for online instant auto loans? The answer is HDFC Bank. Okay, it offers instant car loans to existing customers through an initiative called Zip Drive in 1,000 cities. Okay, remember only in 1,000 cities is this facility available. ठीक है, तो ये जो सुविधा है ये बस HDFC के जो कस्टमर्स हैं, प्रिवेलिंग कस्टमर्स हैं, उन लोगों को ही मिलेगा. दे कैन अवेल लोन फ्रॉम एनीवेयर, मतलब कहीं से भी कभी भी वो लोन ले सकते हैं थ्रू नेट बैंकिंग ऑफ HDFC और बाय जस्ट स्कैनिंग द QR कोड, ठीक है, या फिर जस्ट मोबाइल बैंकिंग के थ्रू से. तो बैंक से उन लोगों को विद इन 10 seconds असिस्टेंस मिल जाएगा एंड दे कैन अवेल कार लोन्स, ठीक है. You can see how efficient, how important this app can be in today's situation, because हम लोगों के लिए बैंक जाना बहुत ही मुश्किल हो गया है, बाहर जाना ही मुश्किल हो गया है. तो in these situations apps like this is very important. Now related to this, moving on to the static GK part. यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ HDFC बैंक कहाँ पे है? मुंबई. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एंड इसका MD एंड CEO कौन है? आदित्य पुरी, ठीक है. ये जो इंपॉर्टेंट दोनों फैक्ट्स हैं यहाँ पे मैंने इसको अंडरलाइन किया है, प्लीज यहाँ पे गौर दीजिएगा, ठीक है. Next, again another important campaign, an important project launched in terms of online education. CBSE ties up with which company to introduce curriculum on digital safety? Digital safety के लिए कौन से कंपनी से उसने CBSE ने टाई अप किया है? The answer is Facebook, ठीक है. Basically, this program will cover teacher training on augmented reality and student training on digital safety and online well-being. Now, as you know, due to the COVID situation, education system पूरा online based हो गया है. लेकिन ये जो online system है, इसका जैसे सुविधा है, उसका बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हैं, जैसे कि सेफ्टी रिलेटेड प्रॉब्लम्स, द साइबर बुलिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो होते हैं, ठीक है. तो इसी के लिए हेल्प लेने के लिए CBSE ने टाई अप किया है फेसबुक से. तो इससे क्या किया जाएगा? टीचर को एंड स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दिया जाएगा अबाउट डिजिटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी.
तो अब देख लेते हैं सीबीएसई का चेयरमैन जो है वो है मनोज आहूजा। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि क्योंकि ये एक जो न्यूज है ये आया है अभी ऑन सरफेस, तो इससे रिलेटेड ऑब्वियसली हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो मिल सकता है। तो अगेन हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, चेयरमैन कौन है, ये सब फैक्ट्स जानना पड़ेगा। तो हेडक्वार्टर्स ऑफ सीबीएसई इज इन न्यू दिल्ली एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1962 on 3rd November. Okay, so this is very important since e-learning is now the most important vehicle for education system. Okay, now a very interesting fact here, who won the Diana Award 2020? The answer is India's little girl Freya Thakral. Her name is Freya Thakral. She is a 13-year-old girl who won this award. Basically this award is given on the name of Princess Diana. उनके नाम पे ये चैरिटी है, उनके मेमोरी में ये चैरिटी है कि ये बिलीव किया जाता है कि यंग माइंड्स कैन अचीव एनीथिंग, ठीक है। सो दे हैव द पावर टू चेंज द वर्ल्ड। यंग पीपल के ऊपर ट्रस्ट दिखाने के लिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए ये अवार्ड जो है ये प्रिंसेस डायना के मेमोरी में दिया जाता है। इस साल इसका विनर जो थी वो है एक 13-year-old स्टूडेंट ऑफ ब्रिटिश स्कूल न्यू दिल्ली, उसका नाम है फ्रेया ठकराल। शी हैज रिसीव्ड द 2020 डायना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसके लिए उसने जीता है। अब देखते हैं कि ये ऐप क्या करता है। शी डेवलप दिस ऐप टू कनेक्ट यूजर्स with waste handlers as a measure to help the waste handlers, the rag pickers of Delhi. Recycler app is a web-based mobile application which connects the users with waste handlers. मतलब कि जो न्यू दिल्ली में स्पेशली है, ये अभी भी दिल्ली बेस्ड एक रिसाइकलर ऐप है। मतलब वहाँ पे जो लोग कचरा उठाते हैं, द रैग पिकर्स बोला जाता है उन लोगों को सहायता करने के लिए ये ऐप उसने एक एनविजन किया है या फिर बनाया है, आप बोल सकते हैं। सो दैट्स व्हाई शी गॉट दिस अवार्ड। नाउ after India, which country is planning to ban TikTok and other Chinese apps? The answer is United States. Since the COVID-19 virus, China has become kind of like question marked country. मतलब कि वहाँ पे चाइना को लेके, चाइनीज एप्स को लेके बहुत सारे स्पेकुलेशंस हो रहे हैं, बहुत सारे पॉलिटिक्स हो रहे हैं। However, India took its own step. अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो भी कंसिडर कर रहे हैं कि दे विल बैन सर्टेन चाइनीज एप्स जिसमें टिकटॉक भी इंक्लूडेड है। इसको अनाउंस किया है खुद यूएस सेक्रेटरी जो है, उनका नाम है माइक पॉम्पेयो ने। उन्होंने जुलाई 6 में ये डिक्लेयर किया था। लेकिन द US politicians have repeatedly said that it is not yet decided, but like you can say 90% sure है, मतलब 90% वोट इसके तरफ ही है कि most Chinese apps including TikToks will be banned in the US, ठीक है। यहाँ पे जान लेते हैं टिकटॉक के बारे में कि ये कहाँ पे कौन इसको ओन करता है। इसको ओन करता है बीजिंग बेस्ड कंपनी कॉल्ड ByteDance। अब देखिए टिकटॉक जो है ये whatever we call it, whatever we say about it, no matter how much we love it or criticize it, अब जो ये बैन हो चुका है इसको लेके भी बहुत सारा न्यूज आ रहा है ऑन सोशल मीडिया, ऑन टीवी। तो टिकटॉक जो है इसके बारे में ये जो छोटा सा एक डेटा है इसको याद रखना पड़ेगा कि ये एक बीजिंग बेस्ड कंपनी इसको ओन करता था एंड ByteDance इसका नेम है। इसीलिए टिकटॉक न्यूज में बहुत सारा आ रहा है, इसीलिए ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। Moving on to the next question, Government of India is to release what
for the resumption of film production. As you know कि जो कोविड-19 का जो लॉकडाउन शुरू हुआ था उसके बाद ही मतलब फिल्म प्रोडक्शन जो है वो बंद हो चुका है, ठीक है. बेसिकली जैसे any other sector, any other professional sector has been hit by the COVID-19 situation, वैसे ही इंडिया का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री जो है उसने भी वो भी बंद हो पड़ा है अभी तक. तो इसके लिए जो इंडिया ने स्टेप लिया है दैट इज टू इम्प्लीमेंट सर्टेन SOP मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेशनल प्रोसीडियर्स, ठीक है. The Union Information and Broadcasting Minister Prakash Javadekar announced on July 7, 2020 that the government will soon issue standard operating procedures, that means SOP, to speed up the resumption of film production which has been suspended in March due to nationwide lockdown. तो ये जो रिजम्पशन मतलब कि चालू होना फिर से, तो ये फिल्म इंडस्ट्री को फिर से चालू करने के लिए जो भी मेजर्स लेने पड़ेंगे, द सैनिटाइजेशन मेजर्स या फिर बोलिए कि सिक्योरिटी मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स जो भी लेने पड़ेंगे, सो उसके लिए स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीडियर होता है उसको बोला जाता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर, ठीक है. It is a set of step-by-step instructions compiled by an organization to help the workers. Okay, now a very important question regarding the current situation is this: what are no longer considered as essential commodities under the commodities under the Government of India's Act of Essential Commodities? तो इसका आंसर है हैंड सैनिटाइजर्स एंड फेस मास्क. तो एज स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, ये आपको लगेगा कि क्यों ये एसेंशियल कमोडिटी में नहीं बोला जा रहा है. तो इसका जो रीजन है वो यही है कि एक टाइम था, मतलब जब कोविड का लॉकडाउन शुरू हुआ था तब क्या था, हैंड सैनिटाइजर एंड मास्क जो था उसका उत्पादन ज्यादा नहीं हो रहा था. तो इसीलिए डिमांड जो जितना था सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा था. लेकिन अभी सिचुएशन चेंज हो चुका है. कीपिंग इन माइंड द कोविड सिचुएशन, अब जो है हैंड सैनिटाइजर्स एंड फेस मास्क आर नो लॉन्गर एसेंशियल कमोडिटीज अंडर द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट as their supply is sufficient in the country. अब क्या हो रहा है, लोकल बेसिस में भी ज्यादा से ज्यादा हैंड सैनिटाइजर्स एंड फेस मास्क बनाया जा रहा है. सो देर आर नॉट स्कार्सिटी, मतलब यू कैन से जितना डिमांड है उतना सप्लाई है हैंड सैनिटाइजर्स का एंड फेस मास्क का, इसीलिए इसको एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं रखा गया है अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1955, ठीक है. एंड दिस वाज अनाउंस्ड बाय कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी लीना नंदन, ठीक है. ये नाम याद रखना पड़ेगा कि हु इज आवर कंज्यूमर अफेयर्स सेक्रेटरी, द नेम इज लीना नंदन. Okay, moving on to the next sports related question. Who has been adjudged as South Africa's men's cricketer of the year? Very very important. Quinton de Kock, ठीक है, ये नाम है. अब देख लेते हैं ये जो साउथ अफ्रीकन मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये घोषित किया गया है, इसके साथ साथ ही और भी नाम कुछ क्रिकेटर्स, साउथ अफ्रीकन क्रिकेटर्स के नाम घोषित किए गए हैं. तो वो सब नाम हम लोगों को थोड़ा देख लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम वी कांट से कि सिर्फ ये क्विंटन डी कॉक का ही नाम से क्वेश्चन आएगा. यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि who has been named as women's cricketer of the year in South Africa? तो आंसर होगा लॉरा वुलवार्ड, ठीक है. फिर क्वेश्चन आ सकता है कि मेंस ODI एंड T20 प्लेयर ऑफ द ईयर इन साउथ अफ्रीका कौन है? द आंसर इज लोंगी नीडी, ठीक है. वुमेन्स T20 प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? शबनम इस्माइल, ओके. एंड फैंस फेवरेट प्लेयर ऑफ द ईयर इज डेविड मिलर, ठीक है. तो ये नाम याद रखना पड़ेगा. यू जस्ट हैव टू मेमोराइज इट. देयर इज नो शॉर्टकट टू दिस मेमोराइजिंग मेथड.
ओके, यू जस्ट हैव टू कीप दिस इन माइंड कि ये सब जो नेम्स है, रैंक्स है, इन सब से ही क्वेश्चन आने का संभावना है. ओके, नेक्स्ट अगेन मूविंग ऑन टू book related question. Who wrote the book Overdraft Saving the Indian Saver? ठीक है, the former Reserve Bank of India Governor Urjit Patel. Now this is very important. This book's name is very important here. Why? Because it is related to the subject of Indian economy first of all, ठीक है, and also it focuses on the issue of non-performing assets that has affected Indian banking in recent years and also its causes. मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो होते हैं, जो जिसने समझिए कि लोन लिया था, लोन जो नहीं, जो जो सब लोन लेते हैं एंड वो अल्टीमेटली नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में टर्न हो जाते हैं, तो दैट क्रिएट्स लॉट्स ऑफ लॉस फॉर द बैंक. ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारे बैंक्स ने बहुत सारे ईयर्स से, स्पेशली इन रिसेंट ईयर्स, बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं. तो इस इशू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के ऊपर ही ये बुक पर पर्टिकुलरली फोकस करता है, इसीलिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है. द नेम इज ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, ठीक है, बाय उर्जित पटेल. द बुक विल बी पब्लिश्ड बाय विच पब्लिशर? द आंसर इज हार्पर कॉलिंस. ओके, तो ये अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है, ये क्योंकि एक बहुत ही रेलिवेंट सब्जेक्ट है, इसके लिए बहुत सारे बैंक्स लॉस में रन कर रहे थे, जिसके लिए बैंक्स अमलगमेटेड हो गए हैं, मतलब कि बैंक्स का मर्जर किया गया है. वो क्यों हुआ है? क्योंकि ईयर आफ्टर ईयर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के लिए ऑल्सो बहुत सारे रीजंस थे, लेकिन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स एक बहुत बड़ा रीजन है एक बैंक का लॉस फेसेस करने के लिए. ठीक है, तो इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंस रखता है. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अनदर current affair related to Delhi. Okay, which state will launch the Paudha Lagao Paryavaran Bachao campaign? The answer is New Delhi. And let us look into the facts related to it. ये campaign का duration कब तक होगा? From 10th to 26 July 2020. ये यहाँ पे important है कि duration कहाँ तक होगा. From 10 to 26th of July. ठीक है. The information was passed by Delhi Environment Minister गोपाल राय. दिल्ली का एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? गोपाल राय. ये सब अगेन फैक्ट्स हैं जो याद रखना पड़ेगा. कैंपेन इज लॉस्ट फॉर व्हाई? बिकॉज एज यू ऑल नो कि दिल्ली में एयर पोल्यूशन कितना ज्यादा है, तो उसको घटाने के लिए ये कैंपेन को प्लान किया गया है. एंड इस प्लान के अकॉर्डिंग 31 लाख ऑफ ट्री सैपलिंग्स विल बी planted in 17 days. Okay, and कहाँ पे होगा ये? नियर ITO नेशनल हाईवे 20, NH20 में ITO है, उसके पास ही ये कैंपेन लॉन्च किया जाएगा. ओके, moving on to another virtual game, virtual sports this time. Who has secured a podium position at V-Ram 2020? The answer is Lieutenant Colonel Bharat Pannu. यहाँ पे ये जो है V-Ram, ये क्या है? ये virtual race across America है. You can say it's a marathon, but it is on virtual platform. So like a gaming experience, you can say, you can compare it to a gaming experience, right? So यहाँ पे जो important fact है कि यहाँ पे पहला जो मतलब एक पहला इंडियन आर्मी ऑफिसर है जिन्होंने यहाँ पे एक पोजीशन गेन किया है, जिसको प्लैटिनम पोजीशन बोला जा रहा है, तो या सॉरी पोडियम पोजीशन बोला जा रहा है. तो ये एक्चुअली थर्ड पोजीशन है and it is on the leaderboard at the first edition of virtual race across America 2020.
पन्नू became the first ever Indian to secure a podium position. इस पोडियम को मतलब थर्ड पोजीशन को यहाँ पे इसके टर्म में पोडियम पोजीशन बोला जा रहा है इन इंटरनेशनल अल्ट्रा साइक्लिंग रेस. Okay. Now moving on to a very important step taken by the Indian government. The question is, where did Indian Railways set up a solar plant which has become the first organization in the world to directly supply power to railway overhead line? The answer is Bina, Madhya Pradesh. Okay? अब देख लेते हैं कि इससे क्या होगा. बेसिकली ये जो सोलर प्लांट है ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है. यहाँ से जो मतलब ऊर्जा निकलेगा, प्रोड्यूस किया जाएगा, एनर्जी जो प्रोड्यूस किया जाएगा वो डायरेक्टली पावर सप्लाई कहाँ पे होगा? इंडियन रेलवेज में. तो इसीलिए ये बहुत बड़ा एक प्लानिंग एक प्रोजेक्ट है. इट वुड बी द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड टू डू सो. ठीक है, कि जहां से पावर मतलब बन रहा है वहां से डायरेक्टली रेलवे ओवरहेड लाइन पे पहुंचाया जा रहा है इसको. ठीक है. सो द इंडियन रेलवेज हैज पार्टनर्ड विद भेल, दैट इज भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, under its corporate social responsibility CSR scheme for first of its kind project and in the world. मतलब CSR and भेल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक जो यहाँ पे एडिशनल एक सपोर्ट है यहाँ पे, उसके कारण ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा. इसका टारगेट क्या है? टारगेट यही है कि टू ट्रांसफॉर्म इंडियन रेलवेज it's as the net zero carbon emission mass transportation network by 2030. net zero carbon emission pollution घटाने के लिए बेसिकली. और एंड लुक एट द स्टैटिक जी के पार्ट कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज में अभी यूनियन मिनिस्टर कौन है? श्री पीयूष गोयल है. एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री सुरेश अंगाडी चन्ना बसप्पा. And about BHEL, the chairman and MD is Nalin Singhal and its headquarters is in New Delhi. ठीक है, ये सब points है याद रखने वाले. Next, moving on to another fact which relates to an index and India's rating on it. So what is India's rank in the SDG Index 2020 Sustainable Development Report? ठीक है, तो इसका आंसर है 117th रैंक. नाउ इससे जुड़े हुए जो डेटा है वो देख लेते हैं. इंडिया हैज रैंक्ड दिस 117th पोजीशन विद अ स्कोर. ये स्कोर याद रखना है अब हमें. ठीक है, 61.92 is also facing a major challenge in 10 of the 70 SDGs, including zero hunger, good health, gender inequality among others. The index has been topped by Sweden. तो यहाँ पे कौन सा कंट्री टॉप किया है SDG इंडेक्स 2020 को? द आंसर इज स्वीडन. ठीक है, अब ये जो SDG इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स में ये बोला गया है कि इंडिया का जो रैंक है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज इश्यूज की हंगर रिलेटेड इश्यूज, पॉवर्टी, जेंडर इनइक्वालिटी, ये सब जो पॉइंट्स है इनके लिए इसका रैंक थोड़ा सा घट गया है. लेकिन वी कैन होप फॉर द बेस्ट इन द फ्यूचर दैट इंडिया विल रिकवर. And now the 2020 report has reviewed that the performance of 193 UN member states, out of which 166 was ranked under the SDG. SDG का full form क्या है? Sustainable Development Report. ठीक है? Okay. India signed 5 memorandum of understandings with which country for the development of educational infrastructure? The answer is Afghanistan.
ठीक है, अब देख लेते हैं क्यों किया गया है ये किया गया है। 5 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ अंडर द फॉर्मर्स हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स प्रोग्राम। मतलब कि इंडिया का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, मतलब प्रोजेक्ट्स जो कि कुछ कम्युनिटी को हाईली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हेल्प करेंगे, तो वैसे कुछ प्रोजेक्ट्स के अंडर ही ये अफगानिस्तान का प्रोजेक्ट भी आता है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या होगा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लासरूम्स, हायर एजुकेशन बिल्डिंग, रोड विद इन कैंपस ऑफ अल बिरानी यूनिवर्सिटी। तो ये सब जो चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं, ये दिया जाएगा अफगानिस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन को। एंड अबाउट अफगानिस्तान कुछ जान लेते हैं कि इसका करेंसी है अफगानी, ठीक है, एंड प्रेसिडेंट है अशरफ घानी अहमदजाई। ठीक है, ये सारे स्टैटिक जीके से पॉइंट्स हैं। Next, moving on to another fact related to COVID-19. NHRC has constituted an 11-member committee headed by whom to assess the COVID-19 impact on human rights. The answer is K.S. Reddy. Okay. Now, this particular committee which has been set up by NHRC का फुल फॉर्म क्या है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, NHRC का फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है। has set up 11-member expert committee headed by Dr. K.S. Reddy, who is a president of Public Health Foundation of India. क्यों किया गया है ये कमिटी? To study impact of coronavirus on human rights of individuals, particularly marginalized and vulnerable sections of the society, together with migrant laborers, and will also study the future response of the गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया है फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय सेटिंग अप दिस कम्युनिटी। आप जानते हैं कि ये जो कोविड सिचुएशन है, इससे माइग्रेंट लेबर्स को, रूरल वर्कर्स को एंड जो मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द कम्युनिटी है, या फिर एकदम जो बैकवर्ड कम्युनिटी ऑफ द नेशन है, उन सबको बहुत सारे प्रॉब्लम्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। तो कोविड के ये जो इम्पैक्ट्स है, इसको स्टडी करने के लिए ये कमिटी बैठाया गया है हेडेड बाय K.S. रेड्डी। ठीक है, एंड ये जो NHRC है, इसका हेडक्वार्टर है इन न्यू दिल्ली, एंड इसका चेयरमैन है जस्टिस H.L. दत्तू। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा यहाँ से। Next, moving on to an acquisition by one company to another company. तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है, पेमेंट्स प्लेटफॉर्म Paytm to acquire insurance company, which insurance company for $76 million. ठीक है, यहाँ पे कौन सा कंपनी को वो अक्वायर करने वाला है? द आंसर इज रहेजा QBE जनरल इंश्योरेंस। तो ये जो इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम Paytm है, एंड QORQL प्राइवेट लिमिटेड, इसको एक साथ बोला जाता है। ठीक है, पूरा अगर बोले Paytm एंड QORQL प्राइवेट लिमिटेड, a healthcare startup company with majority shareholding of Paytm founder Vijay Shekhar Sharma. Paytm का फाउंडर कौन है? यहाँ से अगेन एक क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज विजय शेखर शर्मा। They have made a deal to acquire the Raheja QBE General Insurance Company by investing $76 million. Okay. नाउ जान लेते हैं कि Paytm का हेडक्वार्टर कहाँ है? नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ओके, एंड इसका प्रेसिडेंट है अमित नायर, एंड इसका लोकेशन है एंड QBE जनरल इंश्योरेंस का कंपनी जो है, उसका हेडक्वार्टर जो लोकेशन है दैट इज इन मुंबई, एंड CEO ऑफ रहेजा QBE इज पंकज अरोड़ा।
ठीक है। तो पेटीएम एंड रहेजा QBE, ये दो नाम हम लोगों को याद रखना है कि इन लोगों में एक टाई अप हुआ है। बेसिकली पेटीएम ने अक्वायर किया है QBE को एंड इसके जुड़े हुए इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इनका MD एंड CEO कौन है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन अनदर फैक्ट, अनदर क्वेश्चन रिलेटेड टू कोविड, who have developed the Unisaver disinfection box to sterilize पर्सनल बिलोंगिंग्स, ये नेम याद रखना है, यूनिसेवियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसर है IIT रूड़की। देख लेते हैं इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमें याद रखना है। The Indian Institute of Technology Roorkee, that is IITR, announced that the researchers team from IIT Roorkee, led by Professor Soumitra Shatpathy, Laboratory of Integrated Nanophotonics and Biomaterials, have developed the disinfection box known as Unisaver box, which can be used to sterilize various personal belongings to minimize the COVID-19 transmission. You can see the relevance of this discovery of this invention here, कि अभी जो है disinfection and disinfectioning certain things, personal belongings properly, sanitizing them and ये बहुत important हो गया है। तो इसीलिए ये यूनिसेवर जो बॉक्स है ये बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है अभी, तो इसीलिए ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अब जान लेते हैं कि जो डायरेक्टर है IITR का वो है प्रोफेसर अजित के चतुर्वेदी एंड इसका लोकेशन ऑब्वियसली है रूड़की, उत्तराखंड। मूविंग ऑन, व्हेन इज वर्ल्ड ज़ूनोसिस डे 2020 सेलिब्रेटेड? The answer is 6 July. What is Zoonosis Day? It's an interesting name, right? The World Zoonosis Day is observed annually. हर साल किया जाता है on July 6 to raise awareness of risk of zoonotic diseases among people. Okay? The day commemorates French biologist Louis Pasteur, who administered the first सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट रेबिस। नाउ ये जो जूनोटिक डिजीजेस है ये क्या होता है? व्हाट इज अ जूनोटिक डिजीज? जूनोटिक डिजीज जो है दैट इज बेसिकली एनिमल बोर्न डिजीजेस, ठीक है। एनिमल बोर्न जो डिजीज होता है वो उसको बोला जाता है जूनोटिक डिजीज। तो यहाँ पे लुइस पास्टोर के लिए उनको कमेमोरेट करके 6 जुलाई में ये सेलिब्रेट किया जाता है। एंड लुइस पास्टोर कौन थे थोड़ा जान लेते हैं। ही इज रिकॉग्नाइज्ड फॉर हिज डिस्कवरीज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ वैक्सीनेशन, microbial fermentation and pasteurization. He also invented the first vaccine of anthrax. Okay, moving on to the next question. Another project related question is, the question is this: who has launched Mission Organic Development Initiative and Greenhouse Project? very important question. Okay, यहाँ पे आंसर जो है लद्दाख में किया गया है by LGRK माथुर, ठीक है, LGRK माथुर। यहाँ पे प्लीज डिसरिगार्ड द 18, ये कुछ नहीं है। द आंसर इज लद्दाख LGRK माथुर, ठीक है। पूरा नाम जान लेते हैं। LRK माथुर मतलब राधा कृष्ण माथुर, हु इज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख। He launched the Mission Organic Development Initiative. देखिए इसका नाम है मोदी, MODI, याद रखने के लिए भी इजी है। Mission Organic Development Initiative, ठीक है। This is a greenhouse project to lead the union territory on a sustainable path. मतलब कि ये जो एक ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट है to reduce air pollution and to heighten the environmental causes awareness, ठीक है। मतलब कि जो एयर पोल्यूशन है उसको घटाने के लिए एंड जो एनवायरमेंटल इश्यूज है उसको थोड़ा सा भी अगर हो सके तो सॉल्व करने के लिए ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा रहा है। तो ये लॉन्च किया गया था ऑन अ वर्चुअल प्लेटफॉर्म फ्रॉम राजनिवास इन लद्दाख, ठीक है। ये नाम लेफ्टिनेंट जनरल RK माथुर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Okay, now as we are heading towards the concluding session today,
Let us look into the penultimate question here. Which state has become the first state with LPG connections in all households? The answer is हिमाचल प्रदेश. अब यहाँ पे देखिए ये चीज कि ये हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट का एक खुद का इनिशिएटिव है जिसको बोला जा रहा है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना. ये नाम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना. ठीक है, इसको क्या किया जा रहा है, इसका एम ये है कि जो हिमाचल प्रदेश में रूरल एरियाज है वहां पे हर एक हाउस होल्ड में, हर एक घर में एलपीजी का कनेक्शन दिया जाएगा. ठीक है, to minimize the accidents which are related to using gas and fire. तो अभी जो हुआ है कि ये किन को दिया जाएगा, जो लोग प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में इंक्लूडेड नहीं हुए हैं उन लोगों को ही सिर्फ ये सुविधा दिया जाएगा. ठीक है, तो जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मतलब ऑलरेडी जो एक पहले ये इम्प्लीमेंट किया गया था कि एलपीजी कनेक्शन इंडिया में सभी घरों में रूरल एरियाज में दिए जाएंगे, वो जो प्रोजेक्ट था उसके अंडर में जो अभी इंक्लूड नहीं है उनको दिया जाएगा ये सुविधा जो नाम है हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना. ठीक है, अब देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर कौन है. हिमाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर. ओके, अनदर इम्पोर्टेंट पॉइंट हियर. Announced on July 6 that Himachal has become the first state in the country where all the household has LPG gas connection, which is a very happy news amidst all this distressing thing that are being going on. Okay, moving on to the last question here. Which state has approved the draft ordinance to reserve 75% private jobs for youth? The answer is Haryana. Okay, the answer here is Haryana. Now see, the Haryana cabinet on July 6, 2020 has approved a proposal. मतलब ये proposal दिया गया है, ये अभी बिल पास नहीं हुआ है. ठीक है, इस proposal में क्या बोला गया है कि एक ordinance के लिए to reserve 75% jobs for the private sector for the state's youth. मतलब हरियाणा के जो यूथ हैं, जो युवा जो लोग हैं, उन लोगों के लिए 75% एक रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर में रखा जाएगा. क्योंकि जॉब अभी बहुत ही, अब जो रिसेशन चल रहा है ड्यू टू कोविड वायरस, इसीलिए बहुत लोगों का जॉब चला गया है. नया जॉब मिलना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो गया है क्योंकि हर एक सेक्टर स्ट्रगल कर रहा है अभी इकोनॉमिकली. तो इसीलिए ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल किया गया है बाय द हरियाणा स्टेट. ड्राफ्ट प्रपोजल है, याद रखना है ये. ठीक है, by the Haryana State Employment of Local Candidates Ordinance 2020 approved by the cabinet under the chairmanship of Chief Minister मनोहर लाल खट्टर. मतलब कि हरियाणा के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इसको अप्रूव किया है, अब इसको सेंटर से अप्रूव होना बाकी है. The draft ordinance will now be placed before the Council of Ministers for its approval in the next meeting. Okay. With that, I would like to conclude today's session. Thank you for joining me with such patience and giving me your time. And please like, share and subscribe our videos so that we can create more videos with your support. And bye bye until next time.